Nimati Property Management. Contact 7667008999. அன்னை பர்னிச்சர்ஸ், அன்னை திருமண சீர்வரிசை பொருட்கள், டிவி, ஃபிரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின் உள்ளிட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் அடங்கிய திருமண சீர்வரிசை ரூபாய் 99,000 மட்டுமே. தமிழகம் முழுவதும் இலவச டோர் டெலிவரி. தொடர்புக்கு 7550014440 9345044044. T. Sumati ji, Dr. T. Sumati. Thank you very much, Speaker, sir. Sir, around 2,000 crores originally meant for Tamil Nadu for PM Shri have been diverted to other states due to the state's opposition to NEP 2020. Sir, through you, I would like to raise concern which has been expressed by our Chief Minister through M.K. Stalin that this is a death knell on cooperative federalism. And sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister also that is it right to use the financial allocation which is meant for actually spending the education, the school education children, is it right to use it as a revengeful tool against the state government? Which is actually affecting the education of the school children, sir. What is your question, Honourable Member? I would like to ask the union government through you, sir, that will it assure the parliament that no state will face fund cuts for rejecting a policy not mandated by law? Thank you, sir. Honourable Minister. Speaker, sir, today is 10th March. 20 more days are within March. The last date of the financial year of 2025 is up to 31st March. Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM3. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honourable member who raised the question. She also came to see me with Honourable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more. Speaker sir, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM3. In Himachal, they are implementing PM3. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. The same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends, they are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegation against Government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. They are devouring the right of Tamil Nadu students to have a pan-Indian education model. Government of India is ready and open. Let them come back. What they have promised. I can quote the date on 15th March. 15th March, they are sent a MOU. Why that account? Let them tell. Why that account? My information, their chief minister was ready to accept that. Some super chief minister, some new person came up. My dear sister Kani Modi is here. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. She only came to me with few friends. He's the education minister, their education minister came to us. They are dishonest. This is unfortunate. It's unfortunate in democracy. They are trying to cover up their failure. They are trying to
Question number 142, Dr. Nalin Soren. Dr. Nalin Soren. Okay. Dr. Nalin Soren. Dr. Nalin Soren. Question number Nalin Soren. और क्वेश्चन चलिए माननीय संस्कृति मंत्री से पूछना। Honorable Speaker, sir, I would like to know from the Honorable Minister of Culture and Tourism that there are a lot of Honorable member, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों के संरक्षण को लेकर के ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सुनिए, सदन के पटल पर देश के संज्ञान में लाने के लिए रखा है। आपके माननीय सदस्यों को मैं प्रश्न बोलने का मौका दिया, आप मंत्री जी का जवाब सुनो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है आपका कि आप पीठ इसे करके मंत्री जी से नीचे सदन वहां पे जवाब तलब करो। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत परंपरा है, ये गलत संसद की मर्यादाओं को उल्लंघन मत कीजिए। आप इस तरीके का, ये आपका तरीका रवैया उचित नहीं है। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर, प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। नो, चलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के देश की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न और आपने जो तरीका रखा है ना, वह तरीका अगर अपनाएंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी इधर करके, ठीक नहीं है ये। जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का उपक्रम है, आजादी के पहले से 1871 में जब इसकी स्थापना हुई, उससे तब से लेकर के अब तक निरंतर ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस एंड एक्सकेवेशंस के लिए निरंतर काम करता है। अभी देश में 3698 से इतनी साइट्स हैं जो एएसआई के अंतर्गत आती है और एएसआई लगातार ऐसी सारी ऐतिहासिक मूल्य की धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 3698 धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ में ऐसे संभावित स्थान जहां हमारे ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक महत्व के स्थानों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, खोजा जा सकता है, जिससे हमारे ऐतिहासिक विरासत और उसकी कंटिन्यूटी पर और अधिक प्रामाणिक रूप से बात की जा सके। ऐसे एक्सकेवेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस निरंतर करता है। इसके साथ साथ में मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स और बिल्डिंग्स का सर्वे करना, एपिग्राफिक रिसर्च करना, आर्कियोलॉजी की ट्रेनिंग प्रदान करना, ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स में म्यूजियम्स की स्थापना करना और उनके साथ साथ में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में साइट्स को इंक्लूड कराने के लिए डॉसियर्स बना करके ऐसी साइट्स को बनाने के लिए, एनलिस्ट कराने के लिए, उनको एनक्रिप्ट कराने के लिए सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना, इन सब विषयों पर निरंतर काम करते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, निरंतर भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि और बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त वो एडॉप्ट हेरिटेज इस नीति के तहत भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी हमारे ऐसे सारे ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों के संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार काम करती है। और इसके साथ साथ में राज्य सरकारें भी अपने अपने यहाँ पर जो चिन्हित धरोहरें हैं, जो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की लिस्ट में आती हैं, उन सब के संरक्षण के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती हैं। महोदय, झारखंड राज्य के दुमका जिला मलूटी गांव में स्थित मलूटी मंदिर तालकोटा से 108 मंदिर बना हुआ है
और उसका अभी 72 मंदिर शेष रह गया। क्या इस पर सरकार विचार रखती है उसको संरक्षण के लिए? माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो दुमका जिले के मंदिरों की चर्चा की है, झारखंड में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 13 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके संरक्षण के लिए काम कर रही है। दुमका के मंदिरों के लिए किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन नहीं। क्वेश्चन नंबर 143 डॉक्टर राजेश मिश्रा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सीधी में 10वीं शताब्दी में निर्मित चंद्रेय शिव मंदिर है, जिसका निर्माण चेद वंश के राजा प्रबोध ने कराया था। वर्तमान में यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। मंदिर का निर्माण बालुआ पत्थर से हुआ था, गर्भगृह गोलाकार है। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य तथा सुंदर पहाड़ियां हैं। इस स्थान को विकसित करने की क्या योजना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? और मेरे ही जिले में बीरबल की जन्मस्थली का साधन स्थली घोघरा स्थान में है, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इस स्थान को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में शामिल कर विकसित करने की योजना क्या है? अगर है तो तत्संबंधी व्यवहार। मेरे ही क्षेत्र में माड़ा में प्राचीन गुफाएं हैं, जो अभी मध्य प्रदेश के पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। माड़ा की गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में शामिल कर संरक्षित व विकसित करने की योजना है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो कारण बताया जाए। जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न संख्या 143 के संदर्भ में नो अभी 143 बाद में लेंगे। अच्छा, इसी को ले रहे। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 142 के संदर्भ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हुए माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में स्थित इस तरह के प्राचीन प्रागैतिहासिक मंदिरों के उनका लिस्ट में नाम था। मेरी तरफ से गलती हो गई थी, इसलिए उनका नाम लिस्ट में था। इसलिए माननीय धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में स्थित मंदिरों और अन्य पुरासंपदाओं के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से संरक्षण किए जाने की योजना पर प्रश्न किया है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी ऐसी ऐतिहासिक महत्व की संपदा को या किसी मंदिर को, ऐसी धरोहर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सूची में सूचीबद्ध होने के बाद में ही उसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षण का काम करती है। सूचीबद्ध करने की अपनी एक निश्चित तय प्रक्रिया है। राज्य सरकार के द्वारा इस तरह का प्रस्ताव आने के बाद या अन्यथा इस तरह की महत्व के विषय को हमारे रीजनल ऑफिस के द्वारा संसूचित करने के बाद में इस तरह की जो है संपदाओं को उस धरोहर सूची में सम्मिलित किया जाता है। इस तरह का अभी कोई प्रस्ताव जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी तरह का प्रस्ताव या संरक्षण गतिविधियों को लेकर के न राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ, नहीं कोई ऐसा प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन है। क्वेश्चन नंबर 143 श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। क्वेश्चन नंबर 143 सर। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। स्पीकर सर, out of a sanctioned strength of 15,276, there are 6,516 vacancies in Ministry of Culture, attached officers and autonomous organizations. And it must be remembered that this government has been in power for last 11 years. Sir, my first supplement to the Honourable Minister is, with over 67 vacancies in conservation branch and significant shortfalls across key divisions like archaeology and epigraphy, how does the ministry assure this House that centrally protected monuments are being adequately maintained and preserved? What specific measures are being taken to address the impact of these shortages on research, heritage, management, routine conservation? The reason I ask this question, sir, that CAG report of 2013 highlighted 92 untraceable monuments. In 21, they have accepted 24 remain missing alongside 501 untraceable objects in Anthropology section.
Why has the government failed to prioritize filling critical ASIs? And does he know that there are water leaks, cracks, vegetation growth on Taj Mahal? How do you justify your failure to ensure proper upkeep even for India's most iconic monuments? And does he have the manpower in ASI to protect Taj Mahal and the beautiful Charminar? माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य सदस्य ने जो प्रश्न किया है थोड़ा विस्तृत, उन्होंने 5-6 तरह के विषयों को एक साथ में छूने की प्रश्न करने की कोशिश की है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए और आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने ओवरऑल मंत्रालय में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की बात की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं, जहां माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, 8,755 टोटल हमारे यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और यह सही है कि वर्तमान में 4,845 कर्मचारी उसमें विभिन्न स्तर पर कार्यरत हैं। लेकिन मंत्रालय के द्वारा और विभाग के द्वारा यूपीएससी और एसएससी को जिन पदों पे भर्ती के लिए ऑलरेडी रिकमेंडेशन भेजी जा चुकी है और जिनकी भर्ती एसएससी और यूपीएससी के लेवल पर प्रक्रियाधीन है, वो संख्या 3,203 है। और इसके अतिरिक्त 317 पद पेंशन के माध्यम से जो भरे जाने हैं, उनकी प्रक्रिया भी विभाग में चल रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 300 के आसपास ऐसे पद होते हैं जिनको एसएससी और यूपीएससी को संसूचित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो 8,755 पद हैं, उनमें से 8,000 से 500 से ज्यादा पदों पे या तो भर्ती है या उनको भर्ती करना प्रक्रियाधीन है। और मैं माननीय सदस्य के ने जो प्रश्न किया है कि कंजर्वेशन ब्रांच को लेकर के जो उन्होंने प्रश्न किया है, उसमें भी 831 पदों में से 270 पद फील्ड है। 561 वैकेंसीज के अगेंस्ट में 490 वैकेंसीज ऑलरेडी जो है यूपीएससी और एसएससी पे विचाराधीन है। और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद में, क्योंकि मोदी सरकार ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराने को प्राथमिकता देती है, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही शीघ्र ये पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। माननीय सदस्य ने दूसरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है, ये मैं सदस्य के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूँ, जो अधिकांश पद खाली हैं 3,200 के, उसमें अधिकांश पद एमटीएस के खाली हैं। और एमटीएस पोजीशन पर इस तरह का काम इम्पैक्ट न हो, उसको लेकर के हमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो है उसमें अपॉइंट किया हुआ है। जहाँ तक ताजमहल के रखरखाव का विषय है, मैं सदस्य और माननीय सदन के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। ये सही है कि उसमें वाटर लीक का एक इंसिडेंस ऐसा ऑब्जर्व हुआ था, लेकिन लगातार बरसात होने के कारण जो परिस्थिति हुई और उसको लेकर के तुरंत जो है उसको अमेंड किया गया है। भारत सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, पूरी तरह से जवाबदारी के साथ में अपने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। मैं सदन को और राष्ट्र को सुनिश्चित कराने को पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विरासत का सम्मान करते हुए, संरक्षण करते हुए विकास करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य Sir, my second supplementary is, has the ministry considered the standing committee recommendation to develop a dedicated management cadre within ASI for daily administration of centrally protected monuments, including visitor management and executive measures? Do you have any plans to bifurcation of ASI into two wings, one focus on exploration, excavation and conservation, and other handling revenue generating activities? Sir, lastly, the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property is operating only at 24% sanctioned strength with 25 employees against 103 sanctioned posts. Is it not true that it impacts the ministry's critical research, preservation, restoration? And lastly, what steps is this government taking to ensure that the ASI is detoxified? Because from last 50 years, ASI has become a handmaiden of Hindutva ideology. Whether they will ensure that ASI works according to the ethos of our constitution, that is secularism and pluralism. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक ही सप्लीमेंट्री में 3 तरह के प्रश्न आपके माध्यम से मुझे पूछा है।
जहां तक एसआईसी के कार्डर के बाइफर्केशन का अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर के प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए और सदन के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य ने किसी एक पर्टिकुलर विभाग में वैकेंसीज को लेकर के प्रश्न किया है, मैंने अपने पहले पूरक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है कि भर्ती प्रक्रियाधीन है और इन सारी वैकेंसीज के अगेंस्ट में, लगभग सब वैकेंसीज के अगेंस्ट में हम यूपीएससी और एसएससी को जहां जिसके हमारे जो है वैकेंसीज भरी जानी है उस संस्था को हमने ऑलरेडी उसको रिपोर्ट किया, उस पर कार्रवाई चालू है। माननीय सदस्य ने तीसरी चिंता जो है पिछले 50 साल के कालखंड की व्यक्त की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 50 साल के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन पिछले 10 साल और 8 महीने से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और वो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विचारधारा के साथ में काम करती है। कुछ लोग ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को शायद पहले कभी कोई प्रिविलेजेस मिला करते थे और उनको किसी जो है पूजा पद्धति के आधार पे जो प्रिविलेजेस मिलते थे या वोट बैंक की ताकत के आधार पे जो प्रिविलेजेस मिलते थे, शायद वो अब समानता की कैटेगरी में ब्रैकेट में आने के कारण से वो प्रिविलेजेस जब से मिलना बंद हुए, शायद हो सकता है इस तरह का विचार किसी के मन में आता होगा। लेकिन भारत सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबके विकास और सबको साथ लेकर के और जो है एक टीम इंडिया के रूप में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नारे के आधार पर काम करती है। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। मैं माननीय सदस्यों को आग्रह करता हूं अपनी सीट पर जाकर विराजें, सदन को चलने दें। सदन आपका है, अच्छे उत्साह और रंग में सदन शुरू हुआ है। जाइए, अपनी अपनी सीट पर जाइए। कोई बात है तो आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। बोलने का मौका देंगे नहीं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।